हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल व्हाट वी हैव डन, हमने 2x2 मैट्रिसेस का जो है इनवर्स निकाला था। अगेन कंटिन्यूइंग विद द सेम फॉर्मेट, टुडे अगेन वी आर गोइंग टू कंसिडर 2x2 मैट्रिक्स एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इनवर्स यूजिंग सेम टेक्निक। तो लेट वी कंटिन्यू विद few examples I have already taken here. Like if I'm saying here you are having this matrix at your hand 1 3 2 7, okay, ये 2x2 matrix है and now what is our aim? We have to get inverse of the matrix here. Then आप यहाँ पे क्या करोगे? You will be writing this one equal to a times identity. Now what is the value of matrix A? 1 3 2 7. This A to be kept as such and identity mean 1 0 0 1. This is what we have done before. Now once you are done up to here, now what is the concept you need to follow? I have to make this matrix an identity matrix, and now if you want to make it identity you need to make, look, पहले इसको क्या बनाएंगे 1, then you need to make this one 0, then 1, then 0. That was your scheme. So what you need to do, look, already I'm getting 1 here because you are already getting 1 here. तो अब आपने क्या करना है, you will be coming toward this position. Fine. तो इसे अगर अब आप यहाँ पे 0 बनाना चाहते हो, if you remember I told you this is position 1 1 1 2 2 1 2 2. This is to be made 0 with the help of a 1 1. फाइन. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे. तो मतलब पहले क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम R2 एंड चेंज विल बी टेकिंग प्लेस इन R2 ओनली. चेंज विल टेक प्लेस इन R2. तो व्हाट डू वी गेट, लुक 1 3 2 माइनस 2 यहाँ पे 0, देन 7 माइनस 6 यहाँ पे क्या आएगा 1. आई विल बी रीचिंग हियर. इट इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, लुक यहाँ पे क्या है, R2 में से आपने 2 टाइम R1 माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 में से इसका 2 टाइम माइनस किया, माइनस ऑफ 2, देन 1 में से इसका 2 टाइम माइनस किया, तो यहाँ पे क्या गया 1. देन आई एम गेटिंग 1 हियर एज सच. ओके, जो ये एंट्री है ये आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है. फाइन. नाउ फाइनली यू नीड टू मेक दिस वन इक्वल टू 0 हियर. तो फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू, अब ये यहाँ पे क्या 3 है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई R2 by 3 so that I can get 3 here, and then 3 minus 3 that will provide you 0. So this is to be subtracted from R1. So that is your final operation here, R1 minus 3 times R2. So if you introduce this operation here, what I'll be getting here, 1 minus 3 times R2, 1 minus 3 times 0, 1, 3 minus 3 times 1, 0 आएगा. Then I will be getting 0 here and then 1 is equal to a times, now look, 1 में से 3 टाइम माइनस ऑफ 2 माइनस किया, आई विल बी गेटिंग 7. 0 में से माइनस ऑफ 3 टाइम 1 माइनस 3, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, माइनस ऑफ 2 एंड देन इट इज 1. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज मैट्रिक्स A, आई एम गेटिंग अ मैट्रिक्स B such that A into B is equal to identity, mean B is going to be the inverse of A. तो ये आपके पास यहाँ पे इनवर्स है. ओके, अब सिमिलरली हम चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ. लुक, फॉर एग्जांपल नाउ व्हाट हैव बीन गिवन हियर, यू हैव बीन गिवन 3 10 2 7. हाउ टू सिंप्लीफाई इट. नाउ आपके पास फिर वही काम करेंगे, यू विल बी राइटिंग मैट्रिक्स इन सेम फॉर्मेट लाइक आई हैव रिटन देयर. दैट इज वन थिंग वी हैव डन सो फार. एंड नाउ राइट फ्रॉम बिगिनिंग आई नीड टू मेक दिस वन. And if I want to make it 1, there are two options with me. Either I can divide by 3 or I can subtract. तो आप यहाँ पे subtract करेंगे because you will be avoiding fraction and your calculation work will be easier. Fine. तो what I'm doing here, from R1 I'm subtracting R2 to get a change in R1. तो once you subtract, what you will get, 3 minus of 2 1, 10 minus 7 3. There is no change here. Is equal to a times, now look, 1 minus 0 यहाँ पे 1, 0 minus 1 minus 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1. We reach up to here and once again you are reaching the same situation back. Now what is lying here, here is 2. तो अगर यहाँ पे 2 है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, let me check. There is 2, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 में से 2 आपने यहाँ पे क्या करना है, subtract. तो here is R2
From R2 you will be subtracting 2 times R1, like in the previous one we are done. Now it is on the same pattern, you can check. Fine. So what do we get now? It will be becoming 1 3 as such. Okay, a times यहाँ पे 1 minus 1, R1 में कोई चेंज नहीं. Now R2 की टर्न है, R2 minus 2R1, then 7 minus 2 times 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1. Now look, अगर मैं यहाँ पे 0 में से 2 टाइम R1 माइनस किया, माइनस ऑफ 2, देन 1 में से आपने 2 टाइम्स माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3. I'll be reaching here. Again, this has been equal to 1, so there is no need to make any operation. Now finally you have to focus here. Same thing is happening here, like it was happening there. तो अब 3 में से क्या माइनस करेंगे 3. This 3 is lying in R1. I need to make change here. तो R1 में से you will be subtracting 3 times R2. If I multiply R2 by 3, I'll be getting 3, and 3 minus 3, that will become 0 here. तो R1 minus 3 R2, change in R1. So ultimately what we are getting now, this will become identity. It is equal to A into, now look, 1 में से 3 times minus of 2, if you subtract, I'll get 7, minus 1, minus of 3 times 3, minus of 10, then I'll be getting here minus of 2, then I'll get 3. So this one is going to be inverse of A. What is A? That is A here. Now one thing that you can keep your mind, you are always having one shortcut way of checking your answer कि whether your inverse is right or not. वो वे आपके पास यहाँ पे क्या है, look, जब भी आप इनवर्स निकालेंगे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है ना, जिस भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालोगे, रिमेंबर नाउ, जो डायगोनल एलिमेंट है दे विल बी चेंजिंग देयर पोजीशन. फाइन, ये पोजीशन रीशफल हो जाएगा. लुक, जो इनवर्स निकाला है, इफ इट वाज 1 7, इट इज 7 1. और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 3 माइनस ऑफ 2. दैट इज वन थिंग. फाइन, सेम पैटर्न पे लुक, आई विल बी interchanging their position. Fine, 3 7, so now it is 7 3, and then moreover there is change in sign, you can check that one. So whenever you want to get inverse, okay, that is a simple way of getting inverse. Okay, if you want to cross verify कि आपका आंसर वहाँ पे सही है कि नहीं, तो that is the way you can check that one. Fine. Now coming toward third one, let me check what is happening there. Now we are given here third matrix, we have been given 1 minus 1 2 and 3. That is the matrix we have been given. Once again, now be careful here. यहाँ पे क्या है, 1 minus 1 2 3 is equal to A times, यहाँ पे क्या है 1 0 0 1. I'm reaching up to here. That is one thing I'm getting now. अब इसकी बात करते हैं. फिर वही concept, I'm already getting 1. There is no need to make any change. We are okay with the format here. Fine. A11 already आपका 1 है, आप चेक कर सकते हो. Now I need to make conversion here. तो what you will do, यहाँ पे 2 है, 2 minus of 2, तो R2 में से 2 time R1 we are subtracting to get a change in R2. तो accordingly what do we get, 1 minus 1, 2 में से 2 time 1 subtract किया, यहाँ पे 0 आएगा. 3 में से आपने minus of 2 time minus 1, तो that will lead you to 5. You can check, यहाँ पे क्या आएगा 5 is equal to A times. Now रो R1 में कोई चेंज नहीं है, इन R2 यू नीड टू चेक 0 माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम 1 माइनस ऑफ 2, 1 में से 2 टाइम R1, तो यहाँ पे क्या गया 1. वी रीच अप टू हियर. जब ये काम हो गया, ये दोनों आपके बन चुके हैं 1 and 0, A11 एंड देन आपके पास A21. ये पोजीशंस हमारे जो है ये बन चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं. नाउ इट इज टर्न ऑफ A22 एंड यू हैव टू मेक दिस वन इक्वल टू 1. फाइन, तो आई नीड टू मेक दिस वन 1. तो जब भी 1 बनाना है डिवाइड कर दो उसी के साथ. फाइन, अब देखो ये क्या है R2. अगर मैं कंप्लीट R2 को 5 से डिवाइड किया तो चेंज विल टेक प्लेस इन R2. तो व्हाट इज नाउ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विद यू, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज इन R1, that is to be kept as such. Look, you divide here, I'll get same thing. You divide here, I'll get 1. You divide here, I'll be getting minus 2 upon 5, and if you divide here, I'll be getting 1 upon 5.
फाइन, एंड नाउ फाइनली ये आपके तीनों बन चुके हैं. नाउ दीज थ्री दे आर बीइंग जनरेटेड. आई नीड टू मेक दिस वन 0 हेयर. एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? ये 0 बनाना है इसकी हेल्प से, ये 0 हमने इसकी हेल्प से बनाना है. तो यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है 1. तो अब डायरेक्ट इनको ऐड कर दूं. मैं -1 में 1 ऐड करूंगा, मतलब अगर मैं R1 में R2 को ऐड करता हूं देन आर पर्पज विल बी सिंप्लीफाइड. हमारा यहाँ पे पर्पज सोल्व हो जाएगा. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? नाउ लुक, 1 में 0 ऐड किया 1, -1 में 1 ऐड किया, यहाँ पे 0 आ गया. हियर इज 0, हियर इज 1. इट इज इक्वल टू a टाइम्स. नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, लेट मी चेक. आप 1 में -2/5 ऐड करेंगे, 3/5. देन अगर मैं यहाँ पे 0 में 1/5 ऐड किया, I'll be getting 1/5. देन I'll be getting -2/5 and then it is 1/5. Fine. Now you can take 1/5 outside. तो अगर मैंने 1/5 को यहाँ पे बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा 3, 1 -2, 1. तो that is the inverse now. ये पूरा जो है that has been the inverse of this matrix. Now you may check diagonal element ये इंटरचेंज हो गए और इनका साइन यहाँ पे चेंज हो गया. फ्रॉम अ मैट्रिक्स अ थिंग कैन ऑलवेज बी, अगर कोई टर्म आपको ऐसा लगता है जो कि थ्रू आउट कॉमन आ रहा है फ्रॉम अ मैट्रिक्स, डेट कैन बी टेकन आउट. बट नाउ आपके माइंड में ये क्वेरी आएगी, व्हाई दिस 5 इज हैपनिंग हियर? ओके, व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग एनी सच टर्म इन दैट केस? इसका भी कारण है, मैं आपको एक और डायरेक्ट कारण बता के चलता हूं. लुक, आपने यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअल में व्हाट इज द प्रोडक्ट? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है डायगोनल एलिमेंट का? 1 × 7 7, 3 × 2 6. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1. ओके, तो एक्चुअल में जो ये इनवर्स है, ओके, इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1/1. यू कैन से ये मेरे पास यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाइड है. ठीक है, हम एक्चुअल में करते क्या है, जो भी हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे एक फैक्टर है, यू हैव टू डिवाइड बाय दैट. फाइन. अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ 7 3 21, 10 2 20, तो 21 - 20 इट विल बी 1. तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा भी ना, आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक. मेरे पास वहां पे सेम रिजल्ट आएगा. हम ये पूरे का पूरा कंसेप्ट अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में हमारे पास इनवर्स निकालने का एक और वे आएगा, वहां पे हम ये कंसेप्ट की बात करेंगे कि हम डिवाइड कैसे करते हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? लुक, 3 × 1 3, 2 × -1 -2, and then they are to be subtracted, but I will get 5, and with that 5 I have to divide, and that is the 5 I'm getting here. So this complete matrix is nothing but inverse of given matrix here. ये आपके पास यहाँ पे given matrix का जो है inverse count होगा, इस बात को आपने समझ के चलना है. Fine. Now coming toward the fourth one, you have been given here, like I'm saying here, we have been given a equal to 6 -3 -2 1. ये आपको गिवन है. I want to get now inverse in this case. तो यहाँ पे क्या है, 6 -3 -2 1. यहाँ पे a times identity we are getting here. Let me make operations here. Here is 6. I need to make it 1. तो 1 कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू नो इट. अगर इसको 1 बनाना है तो हम R1 को 6 से डिवाइड कर देते हैं. लेट इट बी डन. ओके, जब भी 1 बनाना है तो उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा है. ठीक है, तो इन केस अगर सब्ट्रैक्ट करके बनता है तो लेट इट बी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मैंने यहाँ पे 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड कर दिया. नाउ वंस यू डिवाइड बाय 6 हियर, व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे 1, ये डिवाइडिंग है बाय 6, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2. यहाँ पे अगर आपने डिवाइड किया 1/6, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ गया 1. देयर इज नो चेंज इन R2. Now once we are done up to here, now we have to come across this part. I want to make it 0. यहाँ पे क्या -2 है, तो -2 में क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, -2 में 2 ऐड करेंगे, है ना. तो यहाँ पे क्या है, ये R2 है, तो मैं R2 में क्या करूंगा, 2 टाइम्स R1 ऐड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है -2 में आई कैन ऐड 2. तो जब आप R2 में 2 टाइम R1 ऐड करेंगे, बट आई विल बी गेटिंग हियर 1 -1/2. लुक, -2 में 2 टाइम R1 ऐड किया, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा. एंड नाउ देयर इज वन थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट हैज हैपेंड नेवर बिफोर. लुक, 1 में से 2 टाइम्स -1/2
1 में 2 टाइम माइनस 1/2 ऐड किया तो हियर अगेन आई विल बी गेटिंग 0. इट इज इक्वल टू ए टाइम्स, यहाँ पे क्या आ गया 1/6, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया. आप यहाँ पे 0 में 2 टाइम R1 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1/3, एंड देन 1 में अगर आपने 2 टाइम R1 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1. नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, in R2 I'm getting both of entries 0 here, and whenever you are coming across one such situation, okay, in that case it will never be possible for you to find inverse. We will say for this matrix, okay, there is no possibility of getting inverse. Okay, ये तभी होगा जब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे वर्कआउट करते हुए ये पूरा कोई भी एक रो या पूरा कॉलम यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज वी आर नॉट गोइंग विद कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस नहीं हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं. सेम पैटर्न पे वी कैन गो अहेड विद कॉलम, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, बट आपके पास जो है आप जो है अगर रो ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग भी चलते हो इट इज वेल एक्सेप्टेबल. अदरवाइज टेक्निक वहां पे भी वैसे ही है, कॉलम में भी वैसे ही चलता है, जैसे हम रोज की बात करते हैं वैसे कॉलम की बात करते हैं. एनीहाउ नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाइल परफॉर्मिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइन, अगर किसी भी रो में आपके पास यहाँ पे दोनों एंट्रीज 0 आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. वैसे भी आप चेक कर सकते हो, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बट आई विल बी गेटिंग 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 आएगा, 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 हो गया. देन इफ आई डिवाइड बाई 0 बट आई विल गेट एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड, फाइन. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यू विल से वी कांट फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है डेट कांट बी फाउंड, हम यहाँ पे इसका जो इनवर्स है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, याद रखिएगा. तो 2x2 मैट्रिसेस में जो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, वैरायटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करके चलता हूँ, नो सच अ प्रॉब्लम कैन कम टू यू, फाइन. एंड देन आंसर यू कैन ऑलवेज असेस, ये मैंने आपको आंसर असेस करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि व्हाट वे यू कैन गेट योर आंसर, फाइन. अब जो आपके पास यहाँ पे अगला काम है, फाइन, इसके रिगार्डिंग मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफली रिव्यू देके चल रहा हूं. नाउ यू विल बी कमिंग अक्रॉस 3x3 मैट्रिसेस. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या कहा जाएगा, आपको 3x3 मैट्रिसेस की बात की जाएगी एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स. नाउ अगेन यू हैव टू मेक यूज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आई एम टेलिंग यू ओनली वर्किंग स्कीम. ओके, इस वर्किंग स्कीम को आप अच्छे से अपना एक बार समझ लें, गो थ्रू दैट वर्किंग स्कीम हियर. देन इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वो हम अगले मॉड्यूल्स में करके चलेंगे, फाइन. आई विल टेक वन मोर मॉड्यूल टू कंप्लीट द चैप्टर, ओके, एंड देन आई थिंक मैक्सिमम 1 देखेंगे अगर आपको एक और मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट हुई, अदरवाइज ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा मैट्रिसेस का. अब देखो यहाँ पे व्हेन यू विल बी हैविंग अ 3x3 मैट्रिक्स एट योर हैंड, लाइक अब आपको पता है कि यहाँ पे ये एलिमेंट है, अब मेरी बात को समझो. यहाँ पे सपोज ये मैंने यहाँ पे कोई भी एक 3x3 मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है फिलहाल के लिए. तो व्हेन आई हैव टेकन अ 3x3 मैट्रिक्स एंड नाउ जैसे मैं 2x2 में आइडेंटिटी बना रहा था, है ना, याद है आपको, ये देखो ये 2x2 को हमने आइडेंटिटी बनाया था, ऐसे हमें 3x3 दिया जाएगा, उसको हमने आइडेंटिटी बनाना होगा. अब 3x3 में अगर मेरे को आइडेंटिटी बनाना है तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन केस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हियर, यू नो इट, फाइन. अच्छा बात समझो, यहाँ पे ये वर्किंग रूल अपना समझ के चलना. इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप ये एलिमेंट को 1 बनाएंगे. ओके, व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको 1 बनाओगे, दैट इज वन थिंग. जब ये 1 बन गया उसके बाद ये जो नीचे वाले दोनों आपके पास यहाँ पे एलिमेंट हैं, ये दोनों सुन लो यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों को आपने यहाँ पे 0 बनाना है. मतलब किन को, एक तो A21 को और एक A31 को, इन दोनों को आप यहाँ पे 0 बनाएंगे. और ये 0 कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ A11 जो ऊपर पड़ा है. नाउ रिमेंबर इट, with the help of A11 you will make both of these 0. like जैसे आप क्या कर रहे थे,
इसकी हेल्प से ये 0 बना रहे थे, याद है ना। अब यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे ही बनेंगे एक ही बार में। देन अगला टास्क आपने क्या करना है, लुक पहले 1 फिर ये दोनों 0, देन उसके बाद ये 1 बनाएंगे, जो सेकंड 1 ये वाला है, देन मेक a22 इक्वल टू 1, ये आपका थर्ड लेवल होगा। जब आपने a22 को 1 बना दिया, उसके बाद क्या करेंगे, अब a22 के नीचे आ जाओ। जब भी 1 बनाएंगे ना, ये देखो पहले 1 देन 0 देन 1 देन 0, नीचे की तरफ चल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। पहले ये 1 बना, नीचे की तरफ आ गए, दोनों 0, देन ये 1 बनाया, अब इससे नीचे वाला एलिमेंट, तो मेक a32 0, इसको आपने 0 बनाना है। ये कैसे बनाएंगे, विद हेल्प ऑफ a22, विद हेल्प ऑफ a22। तो टिल व्हाट वी डन, ये 1 ये दोनों 0, ये 1 ये 0, ये दोनों 0 इसकी हेल्प से, ये 0 इसकी हेल्प से, देन कम अक्रॉस दिस 1। अगला काम क्या करोगे, मेक a33 इज इक्वल टू 1। जितने भी 1 बनेंगे वो डिवाइड करके बनेंगे, जनरली हमारे पास जितने भी सम आएंगे वहां पे डिवाइड करके बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 1 दोनों 0 1 0 देन 1। जब ये 1 बन गया तो ये अब इसके ऊपर वाले दोनों 0 बनाएंगे, ये इसकी हेल्प से बनेंगे, फाइन। देन मेक a13 a23 बोथ 0 here with the help of what, a33, with help of a33, and finally I'm left with this thing only, है ना। तो यहां पे क्या है, फाइनली we will make a12 0। तो अगर a12 को 0 बनाया तो that will be made with the help of a22, with the help of a22, that is the complete working scheme with you, फाइन। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, सुनो, जब भी आपने एक 3x3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने जनरेट करना है, पहले ये 1 बनाएंगे। जब ये 1 बना दिया तो आपने इन दोनों को 0 बनाना है, ये दोनों 0 किससे बनेंगे, इससे बनेंगे। देन यू विल मेक दिस एलिमेंट 1, फिर इसके नीचे वाला 0 बनाएंगे, ये 0 इसकी हेल्प से बनेगा। फिर आपने ये 1 बनाना है। जब ये 1 बन गया तो आफ्टर गेटिंग दिस 1 यू विल बी मेकिंग बोथ ऑफ दीज एंट्रीज 0 हियर, एंड दीज आर टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ 1, ठीक है। तो देखो ये दोनों 0 इस 1 से, ये दोनों 0 इस 1 से, ये 0 इस 1 से, एंड फाइनली जो ये 0 है ये भी इस 1 से, फाइन। तो पहले a11 देन a21 a31 बोथ 0 विद द हेल्प ऑफ a11, देन a22 1, देन a32 0 विद द हेल्प ऑफ a22, then a33 1, then a13 and a23 both 0 but with the help of a33, and finally you have to come across a12। that is your process, that is your way, okay। अगर आपने 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसका इनवर्स निकालते वक्त एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दे आर टू बी इंप्लीमेंटेड इन दिस फॉर्मेट, एंड मेरी आपको एडवाइस है इसे आप ऐसे ही फॉलो करिए। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे योर आंसर्स विल बी देयर विद यू, ओके। यस, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू बी केयरफुल बट इट इज गोइंग टू बी डैम इजी, फाइन। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आई फियर कि वहां पे आपको आंसर्स डायरेक्ट इजीली मिल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, फाइन। तो फॉर द मोमेंट आप इस स्कीम के गो थ्रू हो जाओ, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस साइज 2x2 मैट्रिसेस एंड गेट देयर इनवर्स ऑन योर ओन। थैंक यू।